Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is construction of factory building, part 2. In the last lecture, we talk about different things regarding this lecture of part 1. And first, the building for food preparation and processing must be of sufficient size to meet the production requirements. Beside this, there is adequate space for installation of the equipment. There is should be sufficient room for plant operations with unobstructed truckways for transport of raw materials and processed products. Uh, Beside this, there is also suggestions of the food experts regarding the construction of the factory building. There are several types of operations which can be performed in the food processing industry, like use of water, detergents, chemicals, heat, and steam. There are several uses of all these things. Consequently, there is a regular production of fumes and water vapors inside the premises. So, so there should be ventilation, proper ventilation should be there. The exhaust boxes where should be there on the walls for the removal of smoke gases and for smoke ash and gases. And beside this, the in the construction of factory building too, we talk about the walls, doors, windows, and ceiling. Beside this, we also discuss about ventilation and lighting. In this chapter, the construction of factory building one, we will discuss about the what is the floor types and what is the drainage system. The floors, the rooms where food is prepared, treated, or processed. The floor surfaces must be made of impervious, non-absorbent, washable, and non-toxic materials. They must be maintained in a sound condition. In a sound condition, and they must be easy to clean and disinfect. Beside the floor should be sufficient slip resistance under all service condition to which it's subjected in order to meet the worker safety requirements. The floor should be constructed of durable, non-toxic, impervious, and washable material that can withstand the constant use of water and movement of heavy wheel trucks. Floor failure is a common source of accident in the food industry. If the floor is too much smooth, it exposes workers to the risk of falls. Over 20% of all workers accidents in such production facilities are due to the falls caused by the slippery nature of the floor, particularly when wet. तो यानी कि जो फ्लोर सर्फेसिस हैं वो स्लिप रेजिस्टेंस होनी चाहिए ताकि जो वर्कर्स वगैरह हैं वो ना गिरें, क्योंकि जो फूड इंडस्ट्री में मोस्टली एक्सीडेंट होते हैं वो 20% स्लिपनेस की वजह से होते हैं. तो नेक्स्ट था इसमें व्हाट आर द शॉक्स. द फ्लोर हैज टू विथस्टैंड द अब्यूज, टेक्निकली नोन एज शॉक. द इक्विपमेंट प्रोसेसिंग ऑपरेशंस एंड एम्प्लॉयज वुड डिश आउट. शॉक कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. तो शॉक ऐसा एक अमल है, यानी दबाव है वो, या स्ट्रेन है या स्ट्रेस है कि जो लोगों के चलने फिरने से फिजिकली या जो ट्रॉलीज वगैरह यूज होती हैं for the carrying the raw materials as well as raw material and the finished product to the warehouses. तो उनके गौजी से जो निशानात वगैरह बनते हैं या उनके वजन से, और इसके अलावा जो इंसान जब चलता है तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है, तो वो जो पाँव घिसते हैं फर्श पे वो. और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स हैं, लाइक डिटर्जेंट हैं, सैनिटाइजर वगैरह हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं. डिफरेंट टाइप्स की क्लीनिंग होती है, डिसमेंटलिंग एज वेल एज क्लीनिंग इन प्लेस. तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के डिटर्जेंट्स, केमिकल्स, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट्स यूज होते हैं. अगर बार बार वो हम ये क्लीनिंग वगैरह का प्रोसेस करेंगे तो इससे भी जो सरफेस मटेरियल है वो मुतासर होता है, डैमेज होता है. तो इसके अलावा फिजिकल शॉक्स हैं, केमिकल शॉक्स हैं, और तो ये सब चीज़ें हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ी थी. आज आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फ्लोर फिनिश रिक्वायरमेंट्स.
So let's start in food and drink production facilities. Each type of material has its place. Most important is the analysis that must be made for each project to ensure that the correct choice from both economical and technical point of view is made. तो एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है जब हम फ्लोर वगैरह का मटेरियल या उसकी फिनिशिंग रिक्वायरमेंट है उसे देखते हैं तो दो चीज़ें या तो इकोनॉमिकली यानी वो यानी इतना ज़्यादा महंगा ना हो कि एक इंडस्ट्री अफोर्ड ना कर सके और सेकेंडली जो है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ऐसा हो कि यानी कि वो फुलफिल करे आर रिक्वायरमेंट जैसे कि स्लिप रेजिस्टेंस को विल स्टैंड विद द टेम्परेचर हॉट वाटर एंड एडवर्स कंडीशन ऑफ द डिटर्जेंट्स एज वेल एज सैनिटाइजर्स तो इस तरह यानी एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द every project to ensure the correct choice. There are two criteria which to be considered in the analysis, that is regularity and durability. तो दो क्राइटेरिया हैं जो कि एनालिसिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. उसमें नंबर वन है जो रेगुलेटरी क्राइटेरिया है और नंबर टू है ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया. इसके थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं दोनों के तो इसे हम वी विल डिस्कस वन बाय वन. रेगुलेटरी क्राइटेरिया में आ जाता है it relates to health hygiene and worker safety and include such properties of floors. तो ये रेगुलेटरी क्राइटेरिया जो है ये रिलेट करता है जो वर्कर सेफ्टी उसकी हेल्थ के और हाइजीनिक कंडीशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द फूड. तो जो फ्लोर की रेगुलेटरी क्राइटेरिया है वो इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. नंबर वन है इम्परमिएबिलिटी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स. इम्परमिएबल करेक्टरिस्टिक्स तो ये है वाटर प्रूफ करेक्टरनेस यानी कि जो पानी है वो अंदर दाखिल ना हो पोर्स वगैरह में यानी पोरोसिटी वगैरह ना हो फ्लोर की. अब्जॉर्प्शन करेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है कि जो अगर डिटर्जेंट वगैरह या केमिकल्स या हॉट वाटर या स्टीम वगैरह जो भी चीज़ हम अप्लाई करेंगे तो वो अब्जॉर्ब ना करें. रेजिस्टेंस टू मैकेनिकल शॉक तो जो मैकेनिकल फोर्स वगैरह अगर यानी कि एम्प्लॉयज वगैरह चल फिर रहे हैं फर्श पे या जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स या जो ट्रॉलीज वगैरह हैं वो रन आउट हो रही हैं ऑन द फ्लोर तो वो जो मैकेनिकल शॉक प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे रेजिस्ट कर रही है ना हो कि वो जो फर्श है वो टूट फूट का शिकार हो जाए. नेक्स्ट है फायर रेजिस्टेंस. तो जो रेगुलेटरी क्राइटेरिया है कि वो जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो फायर रेजिस्टेंस हो यानी उससे आग वगैरह ना लगे. एंटी स्लिप करेक्टरिस्टिक्स तो जो अभी मैंने बोला था कि जो फूड इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होते हैं वो 20% स्लिपरी नेचर ऑफ द फ्लोर की वजह से होते हैं तो एंटी स्लिप करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. ईज ऑफ क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टेंट तो जो हम जो भी जिस तरह की भी क्लीनिंग करना चाहिए ड्राई क्लीनिंग या वेट क्लीनिंग और डिसइंफेक्ट जो भी केमिकल यूज़ करके हम करना चाहिए तो वो इजीली अचीवेबल हों ऑल टारगेट्स. नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया. दिस इज प्राइमरी रिलेटेड टू द यूजेज लाइफ ऑफ द फ्लोर एंड इंक्लूड्स. तो ये जो है ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया ये उसकी यूजेबल लाइफ के रिलेटेड है. तो इसमें नंबर वन आ जाता है केमिकल रेजिस्टेंस. जो केमिकल रेजिस्टेंस है स्पेशली टू एसिड ग्रीस डिटर्जेंट्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स. तो जो ये रेजिस्ट करें जो भी हम एसिड वगैरह अल्कलीज वगैरह यूज कर रही हैं या डिटर्जेंट या डिसइंफेक्टेंट्स यूज कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के नेचर के केमिकल्स के तो उसे रेजिस्ट करें. थर्मल शॉक रेजिस्टेंस वगैरह मसलन सफाई सुथराई के लिए अगर गर्म पानी या स्टीम वगैरह यूज कर रहे हैं या डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन वी रिक्वायर स्टीम एज वेल एज हॉट वाटर तो वो जो फर्श है वो थर्मल शॉक रेजिस्टेंट हो. इसके अलावा रेजिस्टेंस टू अब्रेशन स्क्रैचिंग एंड पॉइंट लोडिंग. तो जो अब्रेशन है इट इज एरोजन बाय फ्रिक्शन और स्क्रैचिंग जो खुरचना वगैरह तो यानी इसकी ड्यूरेबिलिटी पायदारी होनी चाहिए और ये पॉइंट लोडिंग पंक्चर यानी कि सुराख वगैरह ना हो. नंबर टू नेक्स्ट है व्हाट आर द फ्लोर मटेरियल्स के कौन कौन से फ्लोर मटेरियल्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लोर इन द डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज. तो नंबर वन ऑर्डिनरी सीमेंट mosaic and marble floors are comparatively cheap to construct but are unsuitable for most processing area. तो ऑर्डिनरी जो है वो सीमेंट वगैरह यूज करते हैं. मोज़ेक होता है स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स और टाइल्स तो यानी डिफरेंट शेप्स या शक्ल वगैरह बना देते हैं और मार्बल जो मार्बल पत्थर वगैरह यूज होते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स. तो ये रिलेटिवली चीप है पर ये कई मोस्ट इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए अनसूटेबल है. तो दिस कैन नॉट स्टैंड द फिजिकल एंड केमिकल शॉक्स
आर नॉट ड्यूरेबल एंड react with acid। तो ये जो अभी मैंने बोले हैं सीमेंट, मोज़ेक और मार्बल टाइप, ये विथस्टैंड नहीं करते फिजिकल और केमिकल शॉक्स के अगेंस्ट। तो इसकी वजह से ना ये ड्यूरेबल है और ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। These types of floors can be used in offices, stores, or such type of premises where there is a little use of acid and water। तो ये इस तरह के जो फ्लोर मटेरियल हैं, सीमेंट है, मोज़ेक है और मार्बल फ्लोर है, तो ये हम ऑफिस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोर हाउसेज में यूज़ कर सकते हैं, वेयर हाउसेज में यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह की प्रेमिसेस में यूज़ कर सकते हैं जहां हमें पानी का इस्तेमाल या तेज़ाब वगैरह का यूज़ बहुत कम हो। Cement floors are absorbent, while mosaic and marble floors will react with acids and eroded। तो सीमेंट फ्लोर जो हैं वो absorbent है, उनमें पोरोसिटी वगैरह होती है, तो जो उसमें पानी या डिफरेंट लिक्विड्स हैं वो absorb कर लेते हैं। और जो मार्बल फ्लोर्स हैं और या मोज़ेक हैं तो वो डिफरेंट एसिड्स वगैरह के साथ उनकी जब वो रिएक्ट करते हैं तो फिर उनकी इरोजन हो जाती है, तो जो सर्फेसिस हैं वो डिटैच ऑफ हो जाती हैं। Different types of floors may be constructed in the food processing plant depending on the usage and stress or shock likely to receive। तो जो फ्लोर जो डिफरेंट फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्लांट्स हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स हैं वो यूज होते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लोर। तो वो डिपेंड करता है कि उसकी यूजेज कितना है, यानी उसके इस्तेमाल में कितना है, जहाँ वो प्रोसेसिंग एरिया में कितना इस्तेमाल हो रहा है, और वो कितने शॉक्स वगैरह या स्ट्रेस वगैरह को बेयरेबल कर सकता है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी क्रूशियल फैक्टर फॉर द सिलेक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द factory building plant material too for the construction of the floor। The type of floor surfaces finished in food and drink production facilities are epoxies। तो epoxy क्या होती है? Epoxy is a unique coating material that is composed of polymer resins and hardened chemicals such as epoxy glue that react together to create chemical bond which gives a rigid plastic-like shining shape of structure of the surfaces। दोबारा बोलता हूँ, इपॉक्सी क्या होती है? इपॉक्सी इज अ यूनिक कोटिंग मटेरियल that is composed of polymers, resins, and hardening chemicals such as epoxy glue that react together to create chemical bonds in which gives a shine a rigid plastic surface। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फ्लोर्स हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप की इपॉक्सीज वगैरह यूज हो रही हैं। तो इनमें नंबर वन है हाई सॉलिड इपॉक्सीज, 100% सॉलिड इपॉक्सीज, नोवाल इपॉक्सीज, वाटर बॉर्न इपॉक्सी। इसके अलावा यूरीथीन और पॉलीयूरीथीन्स, मिथाइल मिथाइल मेथा एक्रिलेट, polyurethane, linoleum coatings, tilings and stainless sheets। These are all types of the surface material which are available in the market। The choice of material depend upon the industry and the investment। तो जो इंडस्ट्री जो मटेरियल हमने यूज़ करना है, क्योंकि कोई मटेरियल महंगे हैं, कोई सस्ते हैं, तो हर एक के डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो इंडस्ट्री किस तरह की है और वो इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं। मसलन कि जो मिथाइल मिथा एक्रिलेट है, ये इसके एक फंक्शन ये है कि इसकी इंस्टॉलमेंट बहुत इजी है। इंस्टॉलमेंट के अगर 60 मिनट बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो पॉलीयूरेज है, it is resistant, it is used for the resistance purpose। it prevent corrosion, abrasion and impact damage। तो इसके अलावा जो लिनोनियम कोटिंग्स हैं, these are the floor covering materials which is composed of linseed oil, ground coke dust and floor floor wood floor। इसके अलावा जो हैं और ये यानी डिफरेंट कोटिंग है, पॉक्सीज वगैरह हैं जो यूज हो रही हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लोर मटेरियल। तो नंबर वन है पॉक्सी फ्लोर्स। तो epoxy floors these are suitable for food and drink industry। तो जो epoxy floors हैं ये suitable हैं for food and drink industries। ये suitable हैं for food and drink industries। तो इसके अलावा these are specially recommended for mixing area, bottling lines, poultry processing, seafood processing, bakeries, dairies, meat packing and cold storage। तो ये जो different materials हैं
यानी कि डिफरेंट जो प्रोसेसिंग एरियाज में हैं तो ये यूज़ करते हैं पॉक्सी फ्लोर्स, जो मसलन बॉर्डरी लाइन मिक्सिंग फ्लोर एरियाज, पोल्ट्री प्रोसेसिंग, सी प्रोसेसिंग, डिफरेंट यानी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। दे आर टफ, ये काफ़ी हार्ड होते हैं, विस्ट एंड corrosive केमिकल नेचर, अटैक एंड अब्रेशन, ऑपरेशन वगैरह जो स्क्रैचिंग वगैरह होती है, केमिकल का जो अटैक होता है वो, और corrosive केमिकल अटैक को ये रेजिस्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं। दीज आर सीमलेस एंड डोंट हार्बर डर्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हमवार सतह के होते हैं, यानी इसमें सुराख वगैरह नहीं होते, और ये एंड डोंट हार्बर डर्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये यहाँ जो इसके कॉम्बुलेशन ऑफ डर्ट डस्ट वगैरह नहीं होती, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी इसकी सरफेस पे मोस्टली प्रेजेंट नहीं होते। दीज आर इजी टू क्लीन एंड मेंटेन। तो इनकी हम सफाई सुथरा इजी है, और इसकी मेंटेनेंस वगैरह भी इजी है। दे आर स्लिप रेजिस्टेंस इवन व्हेन वेट और ऑयली। तो ये स्लिप रेजिस्टेंस है, इवन के अगर ये एक गीले भी होंगे तब भी ये स्लिप रेजिस्टेंस है, और अगर ऑयली ऑयल मौजूद है सरफेस पे तो तब भी ये स्लिप रेजिस्टेंस है। एग्रीगेट इज द मटेरियल एडेड टू पॉक्सी फ्लोर्स टू इंक्रीज ट्रैक्शन। तो एग्रीगेट एक मटेरियल होता है जो कि ट्रैक्शन को यानी मजीद बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। जो ट्रैक्शन होती है, इट इज एक्चुअली द ग्रिप, फ्रिक्शन और adhesion. तो some floors already have aggregate, others some floors have some floors already have aggregate, others allow a choice. Most common is silica sand, जो white sand या quartz sand इसे कहते हैं, which is economical and versatile but vulnerable to physical and chemical attack. तो इसकी ये चॉइस बेहतरीन है, पर ये फिजिकल और केमिकल अटैक इस पे यानी शॉक्स वगैरह प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो ये भी स्टैंड नहीं करेगी। इसके अलावा जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं वो यूज होते हैं, गैरनेट, बॉक्साइट, एमरी, कार्बोडनम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर वेरी गुड बट एक्सपेंसिव। तो इस तरह यानी कि डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं फॉर फ्लोर सर्विसेज के लिए, तो कुछ महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं, कुछ के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, कुछ के डिसएडवांटेज ज़्यादा हैं। तो कोई कुछ फूड इंडस्ट्री वो उसे अवेल नहीं कर सकती। Next is self-leveling and cementitious screed floors. So these are seamless floors composed of cement-based mix. तो ये seamless floors वगैरह हैं, it is a mixture of the cement, selected aggregate and chemical. तो इन्हें वगैरह mix वगैरह करके ये self-leveling और cementitious screed floors वगैरह बनाए जाते हैं। These are designed to use all types of flooring. तो ये different types की जो flooring है उसके लिए ये सब कुछ यूज होता है। These are easy to install and less expensive. तो जो ये जो सेल्फ लेवलिंग और सीमेंटियस स्क्रीड फ्लोर्स हैं ये इजीली इंस्टॉल्ड हैं और लेस एक्सपेंसिव है दैन एपॉक्सी फ्लोर्स। तो जो एपॉक्सी फ्लोर्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं एज कम्पेयर टू द सेल्फ लेवलिंग एंड सीमेंटियस फ्लोर्स। तो क्लीनिंग ऑफ दिस फ्लोर इज आल्सो इजी बिकॉज ऑफ सीमलेस। तो इस तरह के जो फ्लोर्स वगैरह हैं उनकी जो सफाई सुथराई है वो हम इजीली कर सकते हैं, और इसकी जो सर्फेसिस हैं वो हमवार होती हैं। नो डेंजर ऑफ डर्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देयर इज वेरी less chances for the accumulation of dirt and dust on the surfaces, and the percolation of the microorganism will be there. Next, and tiled floors. Tiled floors, uh, tiles with a porosity of virtually zero are available for the food industry. तो जो जिसकी porosity virtually zero होती है वो tiles available हैं for the food industry. तो different types के tiles वगैरह available होती हैं। These combined with high compressive strength of both the tile and the installation materials led to high strength, durable, virtually stainless and trouble-free floors. Some tiles manufacturer प्रोवाइड गारंटी ऑफ 10 years। तो जो फर्श वगैरह की जो टाइल्स वगैरह की जो लाइफ टाइम की जो लाइफ की जो गारंटी देते हैं वो 10 साल होती है, जबकि जो एक्चुअली एक्सपेक्टेंसी फॉर ग्रेटर, तो जो एक्चुअल लाइफ है वो टाइल्स वगैरह की वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो ज़्यादा है। दे आर सेफ, हाइजेनिक, लॉन्ग लास्टिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये सेफ भी हैं, हाइजेनिक भी हैं, यानी कि इस अगर ये फर्श वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो इट विल नॉट कॉज एनी हेल्थ हैजर्ड टुवर्ड द वर्कर एज वेल एज द फूड। तो
कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, दीज आर सूटेबल फॉर डेयरी एंड बेवरेज इंडस्ट्री। तो ये मोस्टली रिकमेंडेड की जाती हैं। टाइल्स वगैरह के फर्श और दीवारें भी हमने पढ़ी थी कि वहाँ टाइल वगैरह लॉन्ग लास्टिंग है और अच्छे अफेक्ट करती हैं फॉर डेयरी एंड बेवरेज इंडस्ट्री। तो अगर टाइल्स वगैरह में ग्रूव्स होती हैं, these are the long narrow cuts or depression on the hard surface। तो ग्रूव्स वगैरह अगर टाइल्स के दरमियान हैं तो इस तरह की टाइल्स वगैरह को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इट विल कॉज कंटामिनेशन ऑफ द फूड। नेक्स्ट है स्टील शीट फ्लोर्स। स्टील शीट फ्लोर दीज आर ड्यूरेबल। तो ये काफ़ी हद तक पायदार हैं, नॉन टॉक्सिक हैं, यानी कोई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते, बट क्वाइट एक्सपेंसिव। तो लेकिन एक्सपेंसिव वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं जो इस तरह के जो फ्लोर्स हैं। दीज आर कॉमनली यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री। तो इस तरह की जो फ्लोर्स वगैरह हैं उन्हें हम बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं इन पाकिस्तान। these are a little bit slippery, hence care must be taken while working on such floors। तो अगर हम इस तरह के फ्लोर्स वगैरह यूज़ करेंगे इन द प्रिंसेस ऑफ द फूड इंडस्ट्री तो फिर केयर करनी पड़ेगी क्योंकि ये अगर बैटर वगैरह होगा अगर या सरफेस पे ऑयल वगैरह होगा तो जो वर्कर है उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा। नेक्स्ट हेडिंग है ड्रेन्स। तो ड्रेन्स जो होती हैं ये वेस्टेज वगैरह को, जो लिक्विड वेस्ट है उसे फूड इंडस्ट्री से बाहर निकालती हैं। तो फ्लो ड्रेन्स आर meant to carry waste and hence could be a major source of microbial contamination in food processing plant। जो फूड ड्रेन फ्लो ड्रेन्स हैं उसका मतलब ये है कि ये वेस्ट को कैरी करती हैं और ये वेस्ट को कैरी करती हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ rodents, insects, pests as well as the microorganisms will be there and they will cause troubleness towards the safety of the food। तो इसके लिए thus they require special attention। तो इस तरह के जो ड्रेन वगैरह की सफाई सुथराई या सैनिटेशन तो या वेंटिलेशन वगैरह के लिए प्रॉपर स्पेशल अटेंशन हमें चाहिए। तो फ्लो ड्रेन शुड बी ऑफ एडिक्वेट नंबर एंड साइज। तो जो फ्लोर वगैरह हैं फ्लोर तो वो उन कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। फ्लो ड्रेन शुड बी ऑफ एडिक्वेट नंबर एंड साइज। तो जो फूड प्रोसेसिंग अगर ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है तो नंबर एंड साइज ज़्यादा होगा ड्रेन वगैरह का। अगर छोटी इंडस्ट्री है तो साइज और नंबर वगैरह कम होंगे। तो यानी कि प्रॉपर लेंथ और उसकी विड्थ वगैरह होनी चाहिए, एडिक्वेट नंबर एंड साइज। और अप्रोप्रिएटली लोकेटेड, यानी कि ये नहीं कि हम प्रोसेस कहीं और कर रहे हैं और जो ड्रेन वगैरह की लोकेशन है वो कहीं और है, यानी वो जहाँ वेस्टेज वगैरह प्रोड्यूस हो रही है तो वो ड्रेन बिल्कुल पास ही होने चाहिए। ये ना हो कि वो ज़्यादा उसे फासला तय करना पड़े और हमें ज़्यादा स्लोपी सरफेस रिक्वायर होगी तो वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए। इसके अलावा डिज़ाइन एंड इंस्टॉल सो डैट इजी क्लीनेबल। तो उसकी डिज़ाइनिंग और इंस्टॉलेशन है इस तरीके से होनी चाहिए कि वो इजीली क्लीनेबल हो। मेंटेन इन गुड कंडीशन। तो अगर उसकी कंडीशन वगैरह गुड मेंटेन रहेगी, सफाई सुथराई प्रॉपर होगी तो देयर इज लेस चांसेस ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन और द अटैक ऑफ द rodent, insects and pests on the food। The drain should be adequately located and designed such that they are ventilated to the outside the atmosphere। तो ड्रेन वगैरह जो हैं ये गंदी स्मेल आएगी क्योंकि लिक्विड वेस्ट वगैरह जो है उसको डिकम्पोजिशन वगैरह हो रही है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डिफरेंट टाइप्स के वेस्टेज मटेरियल केमिकल्स वगैरह भी होंगे। तो इसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होता है जो कि जो ड्रेन सिस्टम की जो गंदी स्मेल है उसे बाहर निकालता है। It also prevent the entry of insects and rodents inside the premises। तो ये डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट्स रोडेंट्स हैं उनकी ये हार्बर पसंदीदा जगह होती हैं, ये गंदी जगह जो कि फूड इंडस्ट्री में हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एरियाज हैं वो इर्द गिर्द साफ सुथरे होने चाहिए। इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड रोडेंट इनसाइड द प्रीमिसेस। A slope of one a slope of 1 in 50 a quarter inch per foot is usually sufficient to easy flow of liquid waste through the drain। तो जो स्लोप है उसके वो 1/50 होनी चाहिए या क्वार्टर इंच पर फुट। तो इट इज यूजुअली सफिशिएंट टू इजी फ्लो ऑफ लिक्विड वेस्ट थ्रू द ड्रेन। तो जो ड्रेन के थ्रू यानी इजी फ्लो के लिए हमें जो स्लोप वगैरह दरकार होती है वो क्वार्टर इंच पर फुट होती है। तो टू टाइप्स ऑफ ड्रेन्स आर कॉमनली यूज इन द फूड इंडस्ट्री। तो दो तरह के ड्रेन्स हैं जो कि कॉमनली यूज करते हैं फूड इंडस्ट्री। नंबर वन है सर्कुलर बास्केट ड्रेन्स जो कि हम यूजुअली घरों में यूज करते हैं, एंड ट्रेंच ड्रेन्स। तो जो ये लॉन्ग होते हैं ड्रेन्स
यानी कि जिस तरह लाइंस वगैरह नहीं होती इस तरह यानी ये ड्रेन लॉन्ग लाइंस ड्रेन्स होते हैं. Two types of drains are common in food industry: circular catch basket drains and trench drains. So the circular catch basket drains and trench drains जो इस इन दोनों में से जो है सर्कुलर ड्रेन है इन्हें हम ऑफनली रिकमेंडेड करते हैं. These must be properly sealed and grouted onto the floor and maintained in good condition. तो ग्राउट होता है यानी कि इट इज अ डेंस फ्लूइड यूज्ड टू फिल द गैप्स, यानी उसकी प्रॉपर सीलिंग वगैरह होनी चाहिए और जो ग्राउट यानी उसकी फिलिंग वगैरह जो इर्द गिर्द है वो प्रॉपर्ली यानी कि डेंस लिक्विड की मदद से होनी चाहिए, उसे कहते हैं ग्राउटेड. It should be properly sealed and grouted to the floor and maintained in good condition. Uh, Trench drain should be so constructed to provide adequate slope to ensure smooth flow of the waste. तो जो ट्रेंच ड्रेन्स हैं वो उसे रिकमेंड करते हैं. उसकी स्लोपी नेचर होनी चाहिए ताकि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द वेस्ट ऑफ द लिक्विड शुड बी देयर. तो आज हमने ऑलमोस्ट जो हमारा टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है. तो समरी इस चैप्टर की ये है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 1 हमने पढ़ा है आज और कल. तो इसमें हमने फ्लोर्स और ड्रेन्स के बारे में पढ़ा है कि फ्लोर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लोर्स. तो इसमें फ्लोर्स में डिफरेंट टाइप के शॉक्स आ जाते हैं: केमिकल शॉक, फिजिकल शॉक एंड थर्मल शॉक. तो इसमें बाद में आज जो हमने पढ़ा है उसमें है फ्लोर फिनिशिंग रिक्वायरमेंट्स. तो उसमें दो तरह का क्राइटेरिया आ जाता है. हर एक क्राइटेरिया के अपने स्पेसिफिकेशंस हैं. नंबर 1 क्राइटेरिया है रेगुलेटरी क्राइटेरिया, जिसमें आ जाती है इम्परमेबिलिटी, अब्जॉर्प्शन, रेजिस्टेंस टू मैकेनिकल शॉक, फायर रेजिस्टेंस, एंटी स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, ईज ऑफ क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग. तो जो दूसरा क्राइटेरिया है वो ड्यूरेबिलिटी क्राइटेरिया है. इसमें आ जाती है केमिकल रेजिस्टेंस, थर्मल शॉक रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टेंट टू अब्रेशन, स्क्रैचिंग एंड पॉइंट लोडिंग. तो फ्लोर मटेरियल्स में हमने पढ़ा है आज के ordinary cement, mosaic and marble floors are comparatively cheap to construct but are unsuitable in most food processing areas. तो ये जो है ये फ्लोर सूटेबल नहीं है फॉर फूड प्रोसेसिंग एरियाज. however we can use it in the different offices as well as the storage area warehouses. So different types of floors may be constructed in a food processing plant depending on the uses and stress shock it likely to receive. तो different types की epoxy materials हैं वो use होते हैं: 100% solid epoxy, novalic epoxy, waterborne epoxy, urethanes, polyurethanes और मिथाइल एक्रिलेट, polyurase एंड लिनोनियम कोटिंग. तो डिफरेंट टाइप्स की ये कोटिंग वगैरह हैं और हर एक की अपनी स्पेसिफिकेशन है. तो डिफरेंट प्रेफरेंस है और डिफरेंट इंडस्ट्रीज की. तो इसके अलावा स्टेनलेस स्टील शीट्स वगैरह भी यूज हो सकती हैं. द चॉइस ऑफ द मटेरियल डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट. तो किस तरह का हम मटेरियल यूज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि कौन सी इंडस्ट्री है और किस तरह की इन्वेस्टमेंट की हुई है. तो फिर ये इपॉक्सी फ्लोर जो हैं वो डिफरेंट एरियाज के लिए यूज होते हैं इन डिफरेंट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. तो ब्लेंडिंग एरियाज, मिक्सिंग एरियाज इन द सी फूड प्रोसेसिंग, पोल्ट्री प्रोसेसिंग, बेकरीज, डायरीज, मीट पैकिंग एंड कोल्ड स्टोरेज. They are tough and are formulated and withstand corrosive chemical attack, abrasion. They are seamless and don't harbor dirt or support growth of bacteria. तो इसके अलावा जो सेल्फ लेवलिंग और सीमेंटियस स्क्रीड फ्लोज हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सेलेक्टेड एग्रीगेट एंड केमिकल्स. तो इसके अलावा टाइल फ्लोज हैं जो लॉन्ग, इसके भी डिफरेंट एडवांटेजेस हैं. वो लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल हैं, विथस्टैंड विद द corrosive नेचर. तो अगर ग्रूव वगैरह उन टाइल्स वगैरह में होंगे तो उन्हें हम रिकमेंड नहीं करेंगे. इसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा ड्रेन्स क्या होते हैं. ये कैरी करते हैं जो वेस्टेज वगैरह होती है विद इन द फूड प्रोसेसिंग सिस्टम. the drains should be adequate number and size, appropriately located, designed and installed so that they are cleanable, maintained in good condition. तो टू टाइप्स के जो ड्रेन है वो यूज होते हैं. तो नंबर 1 है सर्कुलर कैच बास्केट ड्रेन और नंबर 2 है ट्रेंच ड्रेन. तो जो सर्कुलर ड्रेन हैं वो ऑफनली रिकमेंड करते हैं. दीज मस्ट बी प्रॉपर्ली सील्ड एंड ग्रोटेड टू द फ्लोर एंड मेंटेन इन गुड कंडीशन. Trench drains should be so constructed to provide adequate slope to ensure smooth flow of the waste.
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये हदायत थी कि अगस्त यानी 30 जुलाई तक आपने लेक्चर लेने हैं। तो आज आज इस वीक के लेक्चर यानी ख़त्म हो गए हैं। अगर एक आध एक्स्ट्रा क्लास लेनी है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीक हम ये जो भी हमारे कंटेंट है टोटल उसे हम वाइंड अप कर देंगे। तो फिर अगर यूनिवर्सिटी ने टाइम दिया तो रिवीजन वगैरह इसकी होगी। तो काइंडली जो जिन बच्चों की अटेंडेंस कम है तो वो इस मीटिंग वगैरह में इंश्योर किया करें अपनी प्रेजेंस, ताकि उनकी लेक्चर शॉर्टेज ना हो। ये ना हो कि लेक्चर वो कल जो मैंने कहा था कि 65% अटेंडेंस है, वो मैंने अपने पास से कहा था। उसका मतलब ये नहीं था कि आप लोगों ने 65 पे ही इत्तेफाक करना है। तो यानी कि आपकी अटेंडेंस मैक्सिमम होनी चाहिए ताकि आप लोगों का कोई मसला ना हो। ओके, स्टे होम सेफ लाइफ। अल्लाह हाफिज़।